Welcome, welcome, my dear friends. How are you? Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande from Pune, Maharashtra State, India. मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन द सब्जेक्ट काय चिकित्सा, that is internal medicine, and also I am MD in physiology, that is Kriya Shari. So double post graduation. Okay. So I know from first year to last year each and every subject. Nothing to be worried about. We are taking the classes of third year BMS and few classes that I have already conducted about the Kaya Chikitsa. Okay. So that Kaya Chikitsa subject we have completed the Vata Vyadhi part 1, part 2 and part 3. Now this is the little bit change of the subject. Today we will discuss about the important subject, not for everybody, because many of us, we do the Ayurvedic general practice or Ayurvedic consultation or Ayurvedic hospital with Panchakarma facility. But very few of us, we will do the post-graduation, that is MS in surgery, that is Shalya Tantra. But that is also interesting. Those who are interested in doing the post-graduation MS in Shalya Tantra, they must study this Shalya Tantra subject in the last year of BMS perfect. Okay, so they will can get admission for the MS surgery Shalya Tantra in Ayurveda. Yes, we are allowed to do the surgery with the scope of limited type of surgeries, not each and every surgery, not the onco surgery, but we can do hernia, we can do tonsillectomy if we do MS in surgery. I hope you are getting my point. So today's topic is related with the last year of BMS Shalya Tantra subject, and these are the modern topics which are also useful for the general medical practice, because these patients come to I am choosing the topics which are more important for the examination as well as for the practice. I am not taking each and every point of the syllabus to begin with, because in your colleges you learn all the other things, but Dr. Deshpande's lectures will be important for the examination of university and also for the practice. So today we will discuss two important problems of related with the surgery. One is first PPT, deep vein thrombosis. I request my all the students holding my hands, please make the separate notebook for each subject. Kaya Chikitsa separate notebook, Shalya Tantra subject, Shalakya separate, Panchakarma separate, research separate. Each notebook for Dr. Deshpande's lecture. You give the page numbers to all the pages of the notebook. See, I am teaching you online. Secondly, you have to do the index. For example, Shalya Tantra notebook open, first point, first lecture. Today's date is 19th of November, 19/11/2024. Topic DVT, one topic. Second, you also write down abscess. Today we are going to discuss also about abscess. Okay, so let us start with the deep vein thrombosis. Vein का मतलब तो आप जानते हैं. There are the different types of vessels in our body. Artery or arteries carry the oxygenated blood or the pure blood, and veins carry the impure blood, deoxygenated blood. The deoxygenated blood is coming from the legs up and going to the inferior vena cava. All the impure blood coming from the up, that is superior vena cava. So two big veins, they pour the blood into the, yes, right atrium. Am I right? Then it goes to the right ventricle. From right ventricle, it will go to the lungs. Purification, coming back to the left atrium, going into the left ventricle, finally all over the body. Why I am telling you this is the basic anatomy and physiology you must know when you say deep vein thrombosis. तो वेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है.
दूसरी चीज है यहां पर एक वर्ड थ्रोम्बोसिस, सिंपल ब्लड क्लॉट, राइट डाउन, थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट। गुठली बोलते हैं, गुठली, रक्त की गुठली। रक्त की गुठली के दो प्रकार होते हैं, एक है एक जगह पर ठहरने ठहरने वाली गुठली, थ्रोम्बोसिस, स्टेइंग एट वन प्लेस, एंड अनदर इज मूविंग, रक्त की गुठली, दैट इज एम्बोलिज्म। प्लीज राइट डाउन, देयर आर टू वर्ड्स, thrombosis stable, embolism moving, and then that clot can get, what you can say, the trapped in any of the vessel in the body. If they get trapped in the coronary artery, heart attack. If they trapped in the cerebral artery, embolism, brain attack, paralysis. If they trapped into the kidney, kidney failure. See the action, see the action. Okay, so this is deep vein thrombosis. Okay, I think I can take the PowerPoint presentation, and next I will go like this. DVT is a short form. You must remember that short form also. DVT, or the deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis. Okay. Okay, just a moment. Sometimes I have to adjust a little bit screen. Okay, fine. Everything is fine. See here. DVT is a short form. Another name for this deep vein thrombosis is a phlebo, P-H-L-E-B-O. Phlebo means vessel, thrombosis, phlebo thrombosis. What is the exact happening? It is usually happen in the legs. Remember, DVT is not in the hands. No, 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 no. In the legs. In the legs. Write down, in the legs. Either right or either left. And basically, it is more over at the region of the calf. Write down, calf muscle. No, you know the calf muscle is very important in the leg. Huh? See the anatomy, see the Google image picture, calf muscle. Below the knee joint. In front, there is a sheen of the tibia, and on the back side is a bulky muscle. That is calf muscle. Remember that. And there, this particular vein, they have the blood clot inside, and very, very deep. It is not superficial. Varicose veins are superficial. Don't get confused. Varicose veins is a separate question. DVT is a separate question. Varicose veins, like a tortuous, बड़ी बड़ी होती है ना वेन्स, फैल जाती है और हार्ड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती उसमें, तो वो हो गया वेरिकोज वेन्स वाला प्रॉब्लम। ये अभी चर्चा कर रहे हैं थ्रोम्बोसिस वाला प्रॉब्लम, वो भी वेन्स से निगडित है। दोनों प्रॉब्लम्स इज रिलेटेड, दोनों की जगह वेन्स के रिलेटेड है। मतलब वेरिकोज वेन्स वेन्स का प्रॉब्लम है, डीवीटी भी वेन्स का प्रॉब्लम है। तो कोई शब्द जो ज्यादातर सर्जरी में आ जाएंगे, साइन के बारे में आ जाएंगे, सिम्टम के बारे में आ जाएंगे, टेस्ट के बारे में आ जाएंगे। ये हमारी रिसर्चर जो है ना, शास्त्रज्ञ, वो ज्यादातर उधर के रहने वाले, फॉरेन को, इंडियन नहीं है। तो आपको जो नाम मिलेंगे वो उस शास्त्रज्ञ का नाम होता है। जैसे यहां पर देखो, वर्शाउस ट्राइड, वेरी डिफिकल्ट, VIR, वर्शाउस ट्राइड। ट्राइड का मतलब तीन, तीन जो स्थिति है डीवीटी वाली, वो उस शास्त्रज्ञ ने बताई, वर्षा। तो क्या क्या है? पहले है स्टैसिस, रुक जाना, ठहरना, उसी जगह पर ठहरना, ब्लड ऊपर नहीं जाता। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो पहले तो हृदय से पंप हो जाता है प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड वापस आ जाता है। पंपिंग इज अ एक्टिव एक्शन, and taking blood is a, what you can say, the is not direct action, is indirect action, is a passive process। तो अभी ये क्या हो गया, ऊपर आ नहीं रहा है क्योंकि उधर के वेन्स का वॉल वाला प्रॉब्लम है। जैसे वेरिकोज वेन्स में भी वॉल वाला प्रॉब्लम है, यहां भी थोड़ा सा वॉल वाला प्रॉब्लम शुरुआत में होता है, जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होता, उधर का उधर ही ठहर जाता है, लेग्स में, काफ मसल में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैसिस। स्टैसिस का मतलब होता है उसी तक जगह काफ मसल की तरफ बैठ जाना, वो खून आइदर राइट और लेफ्ट साइड। उसके बाद हो जाता है कभी कभार हाइपर कोएगुलेबिलिटी। कोएगुलेशन का मतलब प्लेटलेट्स इकट्ठा आना, प्लेटलेट्स इकट्ठा आना, कोएगुलेबिलिटी। तो ये हाइपर, ज्यादा
प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके द्वारा ही वो गुठली बन जाती है। तो पहले रक्त उधर की उधर ही ठहर रहा है, सर्कुलेशन नहीं अच्छा चल रहा है, उसके बाद उसकी गुठली बन गई। और इसके लिए जिम्मेदार और एक घटक है, उसका नाम है वेन वॉल इंजुरी। कभी कभार वेन के वॉल जो है ना, वो एजिंग की प्रोसेस से, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी क्या बोलते हैं, फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, कमकुवत हो जाते हैं, और जो ऊजिंग हो जाता है, जैसे हमारे पाइप रहते हैं ना घर में, घर पे पाइप रहते हैं ना, वो लीकेज नहीं क्या होता, लीकेज, हाँ, रस्टिंग हो जाता है ना घर पे पाइप पाइप को। उसी तरह यहाँ वेन्स को बुढ़ापे की वजह से, आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष है ना, तो ये वेसल वॉल इंजुरी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चित्र देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है, कर्सर लाके दिखाते हैं, ये देखिए, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फिलहाल ये ऐसा ऊपर वाला नहीं देखता, वो नीचे होती है, हाथ से नहीं लगेगी आपको। फिर ये रक्त की गुठली है। तो ये देखिए पहले वाला हेल्दी स्किन है, ये वाल्व है, वेन्स, ये वेन से, ये वेन है, वेन नीचे वाली पैर वाली वेन, अशुद्ध रक्त ऊपर लेने वाली। उस उधर क्या हो गया, ये देखिए वाल्व कैसे हो गई, ये देखिए वाल्व, और ये देखिए, आपको चित्र बनाना पड़ेगा परीक्षा के टाइम। तो ये वाल्व देखिए आप कैसे होगी, उसके द्वारा कहा क्या हो गया, इधर इतने छोटे छोटे सेल्स थे आरबीसी, ये इकट्ठा कितने हो गए देखिए, ट्रैप हो गई, ऊपर नहीं जा रहे, सर्कुलेशन बेकार हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या हो गया, ये पहला स्टैसिस हो गया, इसके बाद ये हाइपर, ज्यादा ज्यादा भीड़, आरबीसी इकट्ठे हो गई, उसके बाद प्लेटलेट्स आ गए, सब इकट्ठे हो गए सेल्स, और उसके बाद यहां पर ये गुठली बन गई, उसका नाम है एम्बोलस। तो ये वेन इधर से वाल्व खराब हो गई, स्टैसिस चला, बाद में ब्लड क्लॉट हुआ और ये एम्बोलस बना। आई थिंक दिस इज वेरी नाइस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए तीन चीजें यहां पर बताई है, क्या क्या बताइए, स्टैसिस, ये शब्द देखिए स्टैसिस, ये ज्यादा भीड़ जमा हुई। स्टैसिस का मतलब इकट्ठा हो जाना, उधर ही ठहर जाना, सर्कुलेशन नहीं होना, सर्कुलेशन स्टॉप, उधर की उधर ही। उसके बाद क्या हो गया देखिए यहां पर, हाइपर कोएगेबिलिटी, ये देखिए चिपक गए एक दूसरे को, ये प्लेटलेट आ गई, डब्ल्यूबीसी आ गई, आरबीसी आ गए, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, हाइपर, ज्यादा इकट्ठे हो गए। और उसके बाद कभी कभार उसको क्या हो गया देखिए, ये वेन डैमेज हो गई, उधर से ये बाहर आ गए सब सेल्स। हाँ, तो ये वेसल इंजुरी बोलते हैं। ये पहले वाले जो बताया था ना, ये देखिए यहां पर, यही चित्र के द्वारा हम दिखा रहे हैं यहां पर। ये चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ये आप परीक्षा में बना सकते तो अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके कारण देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रोम्बोसिस, ये देखिए ये शब्द है ना, ये देख रहे हैं ना आप, यहां पर कर्सर कर्सर देखिए, इसके द्वारा आपको याद करने के, इसको क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स बोलते हैं, नेमोनिक्स, युक्ति, ध्यान में रखने की युक्ति है ये। कैसे है, पहला टी देखो, टी का मतलब होता है ट्रॉमा। जब भी हम भागदौड़ करते हैं ना, ओलंपिक ट्रेकिंग करता है, कभी कभार जो नसों को वेल्स को प्रॉब्लम आ सकता है, ये मरोड़ा जाता है, टूट जाती है वो। कभी कभार रोड एक्सीडेंट, किसी वजह से हम पैदल चल रहे हैं और पीछे वाली गाड़ियां आ गई, हमें उड़ा दिया, तो ये ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब इंजुरी टू द वेसल वॉल। देख रहे हैं ना, यहां पर कर्सर ला देता आपके साथ। ये हार्मोन, स्त्रियों में जब देखेंगे आप डीवीटी तो पूछेंगे उसको, हाँ क्या पूछेंगे आप, अपनी मतलब यंग एज में आप ये ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते थे क्या, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली पिल, माला डी, आपने पढ़ा है पहले गायनिकोलॉजी में। तो उस हार्मोनल की वजह से ज्यादा वक्त, एक दो तीन साल लेने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद ये इंक्रीज कोएगबिलिटी हो जाती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ओ का मतलब ऑपरेशन, कभी कभार कुछ ऑपरेशन करने के बाद ये रक्त इकट्ठा होने की शुरुआत हो जाती है, कोलिसिस्टेक्टोमी के बाद ज्यादातर। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब गॉल ब्लैडर निकाल देना। मैं मानता हूं कि इसका डीवीटी से डायरेक्ट संबंध नहीं है भैया, कुछ भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। फिर कौन से भी ऑपरेशन के बाद ये डीवीटी का प्रॉब्लम आ सकता है, पॉसिबिलिटी, नॉट 100%, 10-20% पॉसिबिलिटी है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा मैंने, ओसीपी लिखा है, रोड एक्सीडेंट, ये मैलिग्नेंसी, कभी कभार कैंसर वहां पर है, तो स्लगिश ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता। उसके बाद ब्लड डिसऑर्डर, पॉलीसाइथेमिया, मतलब हमारी आरबीसी की जो काउंट है ना, हिमोग्लोबिन, उसका परसेंटेज नॉर्मली कितना है, 12 to 14 ग्राम परसेंट। ये जब 18, 19, 20 हो जाए ना ग्राम परसेंट, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ये भी एक कारण इकट्ठा होने का। उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हड्डियों की कुछ शल्य कर्म कर दिया, तो ये बाद में
एज ए लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द, बिकॉज क्या हो जाता है, जो ऑपरेशन के बाद में आदमी लेटा रहता है, ज्यादा मूवमेंट ही नहीं करता एक जगह पर। हाँ, बेड रिडन रहते हैं ना, उन पेशेंट में भी ये डीवीटी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, मूवमेंट ही नहीं है, प्लास्टर ज्यादा टाइम लगा, फ्रैक्चर हो गया, हिलता नहीं है, हेमिप्लेजिया हो गया, तो उन पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं। स्टैसिस, स्टैसिस का मतलब उधर इकट्ठा होना, मूवमेंट है, इसीलिए फिजियोथेरेपी करते हैं ना, ऐसा घुमाओ पैर, ऊपर नीचे करो, ऊपर क्यों करते हैं, ये डीवीटी टालने के लिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। सीरियस इलनेस, स्ट्रोक का मतलब पैरालिसिस, यहां ब्रेन में थ्रोम्बोसिस, मायोकार्ड इंफार्क्शन हार्ट अटैक, इमोबिलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके दवाखाने में डीवीटी का पेशेंट आएगा तो उसको पहला पूछने का, उसका एज देखने का, ये ज्यादा 40-50 के पेशेंट रहते हैं, उनको पूछने का अभी कुछ बीमारी थी क्या आपको, कि जिसकी वजह से आप ज्यादा टाइम आपको रेस्ट, बेड रेस्ट लेनी पड़ी, ऐसा कुछ है क्या। वो बोले हाँ सर मेरा फ्रैक्चर हुआ था उस टाइम, 1 महीना 1.5 महीना सर मैं लेटा रहा था। तो ये देखिए इमोबिलाइजेशन है ना। उसके बाद आता है स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लीन होती है ना हमारी प्लीहा, तो उसका भी हम निकाल देंगे, तो ये गड़बड़ी हो सकती है डीवीटी वाली प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त। अभी लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स, हाँ, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑकर्स ऑन द सेकंड डे एंड फिफ्थ एंड सिक्स डे इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ये प्रॉब्लम कब चालू हो जाता है, कौन सा भी शस्त्र कर्म करने के बाद दूसरे दिन या पांचवें छठे दिन पर यह प्रॉब्लम चालू हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फर्स्ट कंप्लेंट इज, पेशेंट की तकरार, शिकायत क्या हो जाएगी, पहला बोलेगा देखो डॉक्टर ये सूज गया है मेरा, दाहिना पाय या बाया, लेफ्ट राइट और लेफ्ट एक ही होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दफा दोनों हो गए, राइट और लेफ्ट, उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद उसका जो कलर है काफ मसल वाला, एरिथीमा, लाल कलर हो जाता है। डायलेटेड वेन्स, जैसे कि वेरिकोज वेन्स होते हैं ना, उसी तरह पैरों पर टॉर्चुअस वेन्स बन जाते हैं। डल एकिंग पेन, पेन दर्द होता है काफ मसल के, यहां ध्यान से सुनिए, डीवीटी काफ मसल, डीवीटी काफ मसल। ठीक है, सुपरफिशियल ब्लेब्स ऑन द स्किन, त्वचा भी फट जाती है, और मंद मंद लो ग्रेड बुखार आ जाता है, 100 डिग्रीज 99 डिग्रीज। लेग इज ए टेंस, ऐसा बहुत क्या बोलते हैं ना, टेंस हो जाता है। उसके बाद टेंडर, हाथ लगाने नहीं देता डॉक्टर को, थोड़ा सा हाथ लगाया काफ मसल, वाह डॉक्टर एक्शन इसका मतलब है टेंडर, आयुर्वेद में शब्द है स्पर्शा सहत्व, स्पर्श असहत्व, सह नहीं पाता वो, वार्म गर्मा गर्म रहता है वो काफ मसल। पेल, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश विथ स्ट्रेचड एंड शाइनी स्किन। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। आपको पूछेंगे क्या आपको डीवीटी के टेस्ट मालूम है क्या, क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस मालूम है क्या, उसकी कौन सी टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट याद करना आपको, यह शास्त्रज्ञ फॉरनर है, हम क्या करेंगे, नहीं तो देश पांडे साइन, कुलकर्णी साइन, ऐसे लिख सकते, मेनन की साइन, ऐसा नहीं है भैया, ये होमन साइन है, मोसेस साइन है और न्यूहॉफ साइन है, आपको याद करना पड़ेगा। टीचर तो भूल जाते, फिर स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, होमन साइन पॉजिटिव आ जाती है, मतलब इसका आगे चलकर मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। पैसिव फोर्सफुल डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ये कैसे करते हैं, धीरज रखो धीरज रखो, अगले वाला पीपीटी देखो इंटरेस्टिंग है। हाँ? ये दिखाया है उधर, आप सिर्फ ये याद करना, डेफिनेशन पाठ करनी है आपको, लर्न बाय हार्ट। पैसिव फोर्सफुल डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट विथ एक्सटेंडेड नी विल कॉज द टेंडरनेस इन द काफ मसल, हाथ नहीं लगा सकते। मोसेस साइन क्या है, जेंटल स्क्वीजिंग, उसको स्क्वीज करना ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द काफ फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसे हिलाए उसको काफ मसल को, तो हाँ पेन हो जाता है। न्यूफॉसाइन, thickening and deep tenderness is elicited while palpating deeply in calf muscle, जब जोर से लगाएंगे आप हाथ तो उधर वो आ जाएगा, ठीक है, पेन हो जाएगा। तो आपको मैं अभी ये देखेंगे, ये देखिए होमन साइन, कैसा ये फ्लेक्स किया है ना, डॉर्सिफ्लेक्स, और इधर नीचे देख रहे हैं ना आप, ये कैसे याद, इधर पेन हो रहा है, ये ऐसे खींचने से यहाँ पेन हो जाता है काफ, यहाँ डीवीटी है। ये देखिए मोसेस साइन, ये कैसे किया देखिए, इधर हिलाया है, इधर इधर उधर करके, ये
ऊपर हिलाया है और इधर चल रहा है, ये डीवीटी वाला इफेक्ट, कफ मसल वाला बहुत। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा याद करो, बाकी के रिवीजन के टाइम हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आयुर्वेद में बोलते हैं व्याधि व्यवच्छेदक निदान। क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। व्याधि व्यवच्छेदक निदान, आयुर्वेद का शब्द। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब ये जो तीन आजार हैं उसके लक्षण थोड़े बहुत ये डीवीटी से मिलते जुलते हैं। तो जिन आजारों के, जिन बीमारियों के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेते हैं। जैसे कि रप्चर्ड बेकर सिस्ट, रप्चर्ड प्लांटारिस टेंडन, ये दोनों अलग अलग। सॉरी, यहां पर एक मिनट, मैं आपको यहां दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है या हो सकता है। देखिए, ये कर दिया मैंने, कॉमा कर दिया और ये सेव भी कर देता। ठीक है, सब हो जाता है। हाँ? और फिर एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या है सिखाने में, नॉर्मल होना चाहिए ना, ऐसा आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। देशपांडे सर का सिखाना बहुत आसान, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर ये बेकर सिस्ट, गूगल इमेज, गूगल इमेज, गूगल गुरु, गूगल गुरु, थोड़ा थोड़ा फायदा लेना पड़ेगा यार। हाँ, तो बेकर सिस्ट देखिए, नी के पीछे वाले बाजू में थोड़ा सिस्ट होता है। रप्चर्ड प्लांटारिस टेंडन, ये भी आप इमेजेस देखिए। प्लांटारिस टेंडन कहां पर, एनाटॉमी है। तो एंकल के जॉइंट के पीछे जो होता है वो प्लांटारिस टेंडन, वो रप्चर्ड हो जाने के बाद स्पोर्ट्स में ज्यादा हो जाता है। काफ मसल हिमेटोमा, आई एम सॉरी, यहां पर भी बार बार मैं भूल जो गया हूं, यहां पर भी थोड़ा कामा होना चाहिए भैया। ये देखिए, हाँ, काफ मसल में रक्त की गुठली, हिमेटोमा। ओके, ये भी सेव कर देता। आगे चलेंगे। ओ सॉरी, माय गॉड, सेलुलाइटिस ऑफ द लिम्ब, ये एक बीमारी है। सेलुलाइटिस का मतलब उधर की टिश्यू में इंफ्लेमेशन आ जाता है। और सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये है डीवीटी, अलग प्रकार है उसका, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। उसकी कभी कभार बाद में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। डीपीटी इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? वेनस डॉपलर, आगे जैसे सोनोग्राफी जैसी है भैया। और डुप्लेक्स स्कैनिंग, क्या बोलते हैं? वेनस डॉपलर और डुप्लेक्स स्कैनिंग, इसके द्वारा हमारा जो क्लिनिक क्लिनिक में हम जो दवा खाने में डायग्नोसिस करते हैं उसको बोलते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। बोलिए बोलिए, प्रोविजनल डायग्नोसिस और तात्पुरते निदान। और प्रोविजनल डायग्नोसिस को हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। तो ये डीवीटी का कंफर्मेशन कैसे करेंगे? सोनोग्राफी के द्वारा, वेनस डॉपलर और डुप्लेक्स स्कैनिंग। आगे यहां पिक्चर देखिए आप, इंटरेस्टिंग, ये निकालने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, निकाल आपके समझने के लिए। यहां पर देख रहे हैं पॉप्लिटियल वेन दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है। ये ब्लैक हो गया, देखिए यहां पर पॉप्लिट, ये देखिए, ये नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? थ्रोम्बोसिस हो गया, यहां पर थ्रोम्बोसिस, देख रहे हैं ना आप? ये नॉर्मल ब्लू कलर का वेन है ना, वेन, तो कलर चेंज हो गया यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कलर डुप्लेक्स स्कैन ऑफ डीवीटी, हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर रेडियोलॉजी के लिए। ये देखिए, रेडियो फिमोरल है, थ्रोम्बोस है। हाँ, फिमोरल थ्रोम्बोस, फिमोरल वेन बताई है उन्होंने। ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद करिए, डुप्लेक्स स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या देंगे अभी? पहली वाली ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट। ज्यादा भागदौड़ करेंगे तो सूजन पड़ेगी। वेन में थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस ब्रेक हो गया ना, बड़ा भयंकर डेंजर। रक्त की गुठली जब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी, बूम, क्योंकि उसके एम्बोलिज्म क्या हो जाता है, वो फिरता है, घूमता है इधर उधर। कभी अटक गया हार्ट में तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। जो एम्बोलिज्म की बात, थ्रोम्बोसिस के नहीं बोल रहा हूं, थ्रोम्बोलिस के टुकड़े होने के बाद एम्बोलिज्म बनता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक चीज में अनुभव के द्वारा, कौन सी भी वीडियो के चैनल में, कौन से भी टीचर के मुंह से ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे एक नजदीक वाले फ्रेंड थे, डॉक्टर थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा आपका। वो बाय चांस एक आयुर्वेद सेंटर के कुछ काम करने के लिए वहां पर गए, अधिकारी पोस्ट से। बीच में उनको थोड़ा सा काफ मसल के यहाँ वेरिकोसिटी थी, हाँ थी, डीवीटी का डायग्नोसिस नहीं किया था। फिर और एक दिन उनका पैर में, काफ मसल में पेन होने लगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। हमारे एक नजदीक वाले डॉक्टर
बेंगलोर वाली घटना ही है, नाम नहीं बताऊंगा। तो आयुर्वेद सेंटर में कुछ अधिकारी इससे गए, पेन होने लगा तो उसको थेरेपिस्ट को बोला जरा मेरे को पैर को मसाज कर दो। ये केरलियन वाले जो लोग हैं ना मसाजिस्ट, वो जरा स्ट्रांग मसाज करते हैं मेरे ख्याल से। तो इन्होंने जोर से कुछ किया होगा, उसका फॉल्ट होगा ऐसा नहीं मैं मानता। आप अचरज में पड़ जाएंगे, आपको लगेगा ये सर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहा हूं मैं, शपथ लेकर कहता हूं मैं, हमारे मित्र मर गए। सर क्या बोल रहे हैं आप? सच्ची मैं बता रहा हूं, मेरे मित्र दोस्त मर गए यार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या प्रॉब्लम था मालूम है आपको? ये डीवीटी वाला प्रॉब्लम था, बाद में पता चला। वो मसाज करने के बाद थ्रोम्बोसिस का रूपांतरण एम्बोलिज्म में हो गया, और वो एम्बोलिज्म निकलकर वहां से, पैर से, काफ मसल से निकलकर चेस्ट में आ गया, लंग्स की कैपिलरी में अटक गया, सांस रुक गई, बेचारा मर गया। सांस रुक गई, बेचारा मर गया। समझ रहे देशपांडे सर क्या बता रहे हैं? ऐसा अनुभव बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है। लोग विश्वास नहीं करते, नहीं करते तो आपकी मर्जी। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं, फ्रॉम 1993 टू 2020, सॉरी 2014, 20 साल तक ये देशपांडे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन आयुर्वेद प्रचार के लिए घूमे हैं। तो जब भी मेरा स्पेन में सेंटर चल रहा था पोर्ट साल्वी में, तो सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि जब भी कौन सी भी व्यक्ति के, पेशेंट के, क्लाइंट के पैर के ऊपर वेरिकोसिटी दिख रही है, आपको हर एक को पूछना पड़ेगा कि आपको ये शिकायत नहीं है ना डीवीटी की, और है तो उसको हम लिखते थे स्पेनिश भाषा में, बता रहा हूं मैं, सुआवे मसाखो, सुआवे मसाखो। सर क्या बता रहे हैं आप? अरे लिखो यार, आपके एग्जामिनर क्यों भी बता दो। तो सुआवे मसाको, इसका मतलब वेरी जेंटल मसाज, और नो मसाज एट डीवीटी। क्यों सर, क्यों? अभी बताया ना मैंने कि थ्रोम्बोसिस टूट गया, एम्बोलिज्म बन जाता है, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा, खटैक, स्टॉप फंक्शनिंग। मालूमात पड़ गया? इसीलिए सुनना है देशपांडे सर ऐसे क्यों बताते हैं जोर जोर से, इसीलिए बताता हूं, कृपा करके ध्यान में रखिए। तो बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब, पैर ऊपर उठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो स्टैग्नेशन ना कम हो जाएगा, ग्रेविटी से निकल आएगा वो ब्लड, ठीक है। बैंडेजिंग द एंटायर लिम्ब विद द क्रेप बैंडेज, हाँ, पूरा का पूरा जो पैर है उसके ऊपर क्रेप बैंडेज लगाना पड़ेगा। एंटी कोएगुलेंट देना पड़ेगा, यहां पर देखिए, एंटी कोएगुलेंट जैसे कि हिपेरिन इंजेक्शन रहता है, वॉरफेरिन है, और फेनिडियोन है। ये पहले दो नाम महत्वपूर्ण है, हिपेरिन और वारफेरिन ज्यादा देते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, 10 बार मैं बोलूंगा आपके सामने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दीज टू मेडिसिन। वाई सर, वाई? अरे भैया, जब हार्ट अटैक आता है, आईसीयू में एडमिट होते हो, सीसीयू में एडमिट होते हो, ये देते हैं लोग इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस का अटैक आ गया, हॉस्पिटल को गए, क्या देते हैं इंजेक्शन? ये देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। भूलिए मत, भूलिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इंजेक्शन जब भी शिकायत आ जाएगी तो 4 घंटे के पहले देना है। 4 घंटे, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। बाद में कोई उसका उपयोग नहीं है, पहले देने 4 घंटे पहले, ठीक है। उसके बाद वेनस थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, थ्रोम्बोस निकाल देंगे, टोमी का मतलब निकाल देना। उसके बाद पाल्मा ऑपरेशन नाम का शल्य कर्म करते हैं, या में हुस्नी ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन के नाम आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, बाईपास फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन, जहां भी गुठली है बाईपास करेंगे, ये पाल्मा नाम का सर्जरी है। पाल्मा ये नाम है सर्जरी का, और ये है में हुस्नी ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन डीवीटी के लिए किया जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है? वेनस अल्सर, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल अल्सर, गुरुत्व
कर्षण के द्वारा वो नीचे हमारे पैर में रक्त संचित होने के कारण, बहुत ज्यादा टाइम उधर होने के कारण इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं, त्वचा फट जाती है और अल्सर बन जाता है। तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स और डीवीटी। ओके, ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर गुठली थी और ये पैर कैसा हो गया, देखिए। हाँ, ये अल्सर हो गया, वेनस अल्सर। देख रहे हैं ना, वेनस अल्सर। इसका कभी कभार दुर्लक्ष्य होने पर गैंग्रीन भी हो जाता है। गैंग्रीन का मतलब टोटली ब्लड स्टॉपिंग। और यह जब पूरा काला पड़ जाएगा, ब्लैक, और गैंग्रीन हो जाएगा, तो इधर से पाय कटवाना पड़ेगा आपका। तो ध्यान से ये चीजें जो है, पहले से देख लेना है आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहले वाला टॉपिक है, आधा घंटे वाला डीवीटी का, सर ने अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। अभी ये मैं पीछे जा रहा हूं और बाद में यहां पर शायद दूसरी मेरी पीपीटी है, वो खोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, 1 सेकंड, 1 मिनट का हम थोड़ा सा विश्राम, मतलब एक पॉज लेंगे। डॉक्टर देशपांडे इस वीडियो में बात कर रहे हैं शल्य तंत्र नाम का जो विषय है बीए में स्टूडेंट्स को, उसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा सा एक चेंज ऑफ मूड के लिए ये मेरे पास सब सिलेबस देशपांडे सर ने प्रिंट करके उसकी पीडीएफ बना के, देखिए स्टूडेंट भी नहीं करता, देशपांडे सर करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल दिखा रहा हूं आपको। ये मेरे पास सब फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर सिलेबस ऐसे होते हैं हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में तो रहती है, हार्ड कॉपी में भी होते हैं। तो इधर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कृपा करके आपके नोटबुक में लिख दीजिए। आपको सर्जरी के 2 पेपर्स है, तो हर एक को मालूम है। हाँ, 80 मार्क या 100 मार्क्स का टोटली वो पेपर है, थ्योरी वाला पेपर। पेपर 1 में 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। और दूसरे पेपर में भी पार्ट ए और पार्ट बी है। ठीक है, तो सर ये आप जब अभी पढ़ा रहे हैं ना डीवीटी वाला, वो कहां पर है? हाँ, मैं बता रहा हूं सिलेबस के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं, लिख दीजिए वहां पर, लिख दीजिए, कृपा करके लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा डीवीटी वाला प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे सामने अभी पेपर 1, आप लिख दीजिए कृपा करके। पेपर 1, पेपर 1 शल्य कर्म, शस्त्र, सर्जरी, शस्त्र, शल्य तंत्र, शल्य तंत्र। पेपर 1 लिखा, पार्ट 1 हाँ, पेपर 1 पार्ट 1, उसमें ये चीजें हैं, कौन सी वाली? दूसरे पॉइंट में है, दूसरे पॉइंट में ये है पॉइंट, एप्सिस, विद्रधि। उसका आयुर्वेद का शब्द है विद्रधि, संस्कृत शब्द है, और एप्सिस इंग्रजी शब्द है। एलोपैथी है ना आयुर्वेद। ओके, मॉडर्न सर्जरी। हमारे सुश्रुत को, हमारी सुश्रुत को, हमारा है ना सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट, ओरल के टाइम बताना भूलना मत। सुश्रुत क्या बोलते हैं उसको? फादर ऑफ सर्जरी, पितामह, शल्य तंत्र के पितामह। ये मॉडर्न के बुक में लिखा है, आयुर्वेद के नहीं, मॉडर्न की बुक में। क्योंकि जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना, उसके वो प्रणेता है। कौन? हमारे सुश्रुत। तो ये आ गया पेपर 1 पार्ट 1 का पॉइंट नंबर 2। वहां पर ऐसा है लिखा, जो पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। निरुक्ति, ये शब्द कैसा बना है? निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति का मतलब पैथोजेनेसिस, प्रकार का मतलब टाइप्स, लक्षण मतलब सिम्टम्स, साध्य असाध्यत्व मतलब प्रोग्नोसिस, उपद्रव का मतलब कॉम्प्लिकेशन, एंड चिकित्सा, इसका मतलब ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे उसमें व्याधि है, जैसे कि व्रणशोथ, इन्फ्लेमेशन, विद्रधि, एप्सिस, पीड़िका, बॉयल, नाड़ी व्रण, साइनस और फिस्चुली, और व्रण ग्रंथि दैट इज किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार। देन मर्माघात दैट इज शॉक। देन उसके बाद है कोठ। हाँ? ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सिलेबस का बता रहा था। पेपर 1 पार्ट 1 में ये एप्सिस आया है, और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट था, ये 3, 4 और 5, 6, 6 नंबर का पॉइंट है। पेपर 1 पार्ट 1, छठा पॉइंट। उधर तो नंबर नहीं है सिलेबस में, उसको लिखा, लिखी है सीरा विकार। क्या बताया है? सीरा, सीरा मतलब वेसल, पढ़ा ना आपने डीवीटी, सीरा विकार है, सीरा विकार। तो उसमें वेनस डिसऑर्डर्स, ऐसा सिलेबस का शब्द है, सुपरफिशियल एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो अभी उसकी बात खत्म हो गई, अभी हम चालू करेंगे विद्रधि या एब्सेस की बात। ठीक है, जिसमें पस है, सिंपल सी चीज है, पस।
PUS, पस, पीला पीला रंग का होता है ना। और जब एब्सिस बनता है ना भैया, टेरिबल, टेरिबल हो जाता है। अरे इतना दर्द होता है कि पूछो मत, बुखार आ जाता है। एब्सिस तो हर एक को मालूम है शायद, हर एक को, बच्चा बच्चा जानता है एब्सिस क्या है। फिर अभी हम शास्त्रीय तरीके से उसकी जानकारी देंगे। आयुर्वेद का शब्द ध्यान रखिए। अभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर लेना चाहता हूं। देखिए, बहुत बड़ा स्क्रीन हो गया है। चलो आगे चलो। डेफिनेशन, डेफिनेशन तो पूछते हैं ओरल को। दिस इज नथिंग बट लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। जब एक जगह पर पस बन जाता है, चाहे मेरे हाथ पर हो जाएगा, हाँ, कभी माउथ में हो जाएगा, कभी गुदक के समीप हो जाएगा। ज्यादातर मेरे पेशेंट ज्यादातर मैंने देखे हैं ना, एक बटक्स पर हो जाता है हमेशा। बटक्स पर हमेशा एब्सेस हो जाता है। पहले वहां पे थोड़े बाल रहते हैं ना थोड़े, उसमें इंफेक्शन हो जाता है। ये एब्सेस मतलब ये इंफेक्शन, एब्सेस का मतलब इंफेक्शन। बहुत बार स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस उनका ऑर्गेनिज्म से होता है। यहां पर भी होता है एब्सेस, यहाँ पर एक्जिला में जहां बाल होते हैं ना। तो एक मैंने बता दिया, आपकी बटक्स पर हो जाएगा, थाई रीजन में ज्यादा हो जाता है, एक्जिला में हो जाता है, इंग्वाइनल रीजन में हो जाता है। जब विनेरल डिसीज होते हैं ना, विनेरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी, वहां पर भी हो जाता है। उसका अलग अलग नाम भी है, ब्यूबो ब्यूबो करके। फिर एब्सेस का मतलब पस। यहां पर नहीं है, एक इंटरेस्टिंग बात बता देता। ये पस है ना, पस पूरे ब्लड में फैल गया, पूरे ब्लड में, तो पूरे शरीर बर्बाद हो जाएगा। जब पस ब्लड में मिलजुल जाता है और फैल जाता है, मालूम है क्या कहते हैं? नहीं मालूम नहीं, लिखिए आप, सेप्टिसेमिया। SEP, सेप्टी, TI, सेमिया, CEMI। सेप्टिसेमिया का मतलब पस इन द ब्लड और पूरे शरीर खराब हो गया, तो वो व्यक्ति ज्यादा जीवित रहने की संभावना नहीं है। तो क्यों ऐसा? अरे उसको लिखिए आप शब्द, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। क्या लिखना है आपको? मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। किडनी बर्बाद, एक्यूट रीनल फेल्यूर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, लीवर बंद, एक एक करके अवयव बंद हो जाते हैं। उसको बोलते हैं वो आदमी मर जाता है। मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? सेप्टिसेमिया। क्यों ये बात मैंने छेड़ दिया आपके सामने? क्योंकि सर्जरी में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए 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 लिखिए, उसका नाम है शॉक। SHOCK, शॉक। शॉक का एक महत्वपूर्ण कारण है सेप्टिसेमिया, पस इन द ब्लड। शॉक का मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाना, अनकॉन्शियस, मूर्छित हो जाती है व्यक्ति। आगे तो देखिए, अभी अभी सिर्फ एब्सेस, अभी सेप्टिसेमिया की बात नहीं करेंगे, शॉक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, पहले आपको टाइप्स पूछेंगे ओरल को, 5 टाइप्स, नाम याद रखना। पायोजेनिक एब्सेस, एंटीबियोमा, ओ माय गॉड, एंटीबायोटिक मालूम है ना आपको? उससे संबंध है एंटीबायोटिक, एंटीबियोमा, ओमा ओमा। ओमा का मतलब है गुठली, पस वाली गुठली। यहां पिछले डीवीटी में रक्त वाली थी, यहां पस वाली गुठली है। हम्म? आयुर्वेद ने बताया है उसके 3 अवस्था विद्रधि के, आमावस्था, आमावस्था, पच्चमानावस्था और पक्वावस्था। आमावस्था, पच्चमानावस्था, पक्वावस्था। समझ रहे? तो आमावस्था का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर शुरुआत है पस बनने की, वो ज्यादा खतरनाक होता है। यार, पच्चमान में तो इतना टेंडर हो जाता है ना, ठस 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 अंदर होता है। और जब पक जाता है, कट किया, पस निकल गया, आराम, आहा, आराम ही आराम। तकलीफ कहां ज्यादा होती है? जब तक वो फटता नहीं, पच्चमानावस्था है, हाई फीवर आ जाता है, बुखार 101, हाँ, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पेशेंट ऐसा तड़पता है एब्सेस की वजह से। यस, इतना खतरनाक है। हम एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं। आयुर्वेद वाले लोग रक्त मोक्षण करते हैं जलौका के द्वारा, जलौकावचारण, पंचकर्म, हाँ?
कभी कभार क्या करते हैं, और दशांग लेप लगाते हैं, लेप गोली का लेप लगाते हैं, पोटिस लगाते हैं। जल्दी जल्दी पकना चाहिए, पकने के बाद आराम मिलता है। ठीक है, ये देखिए पायेमिक एप्सिस, हर एक का मैं आगे चलकर एक छोटा छोटा एक्सप्रेशन देने वाला हूं। ठीक है, कोल्ड एप्सिस आगे चलकर, देन ब्रोडीज एप्सिस। देखिए ब्रोडीज एप्सिस, ठीक है। तो ये 5 प्रकार आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन आता है कि एप्सिस, टाइप्स ऑफ द एप्सिस लिखिए, डेफिनेशन लिखिए करके। ठीक है, व्हाट इज पायोजेनिक एप्सिस? इट कैन ऑकर विद इन द विसेरा। विसेरा शब्द मालूम है आपको? यहां पर है, ये देखिए विसेरा। विसेरा मतलब पेट वाले ऑर्गन, स्टमक आता है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलन, असेंडिंग कोलन, ये सब, लीवर, स्प्लीन, ये सब विसेरा है। तो इसमें लीवर में या किडनी में ये जब हो जाता है विद इन द विसेरा, अंदर हो जाता है, तो उसको पायोजेनिक एब्सेस कहते हैं। ओके, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ये क्यों हो जाता है? तो माइनर और मेजर एक्सटर्नल वुंड, अंदर से या बाहर से कुछ जख्म हो गई उसको, थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स टेक एंट्री इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेस। बाहर से कुछ जंतु होते हैं, वो अंदर जाते हैं और उनके टॉक्सिन्स के द्वारा वो पस बन जाता है। पस में टॉक्सिन्स भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। हाँ? आगे है पायोजेनिक एब्सिस, उसके क्लिनिकल फीचर्स। जहां भी ये एब्सिस बन जाएगा, थोड़ा सा मैं पीछे रहता, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन, उस अवयव की कार्य हानि हो जाती है। अंदर है तो लीवर काम नहीं करेगा, किडनी फेल हो जाएगी। बाहर है तो वो हाथ नहीं हिला सकेगा आदमी, पैर नहीं हिला सकेगा, जहां पर वह आए। बुद्ध मार्ग के समीप है तो बैठ नहीं सकेगा। लॉस ऑफ फन, उस अवयव के कार्य हानि हो जाएगी। फ्लक्चुएशन टेस्ट इज पॉजिटिव, अंदर जब पस होता है तो फ्लक्चुएशन का मतलब ऐसे हिलाते हैं तो प्रचिति आ जाती है कि अंदर कुछ फ्लूइड है, फ्लूइड, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। इट इज निगेटिव इन द डीप सीटेड एब्सेस, जब अंदर है, बहुत अंदर किडनी में, तो बाहर से स्किन ऐसे करने से पता नहीं चलेगा। हाँ, मेरे हाथ पर यहां पर एब्सेस है तो ऐसे मैंने हिलाया तो पता चलेगा। फिर मेरे पेट के बहुत अंदर है, कैसा पता चलेगा मेरे को? ट्यूमर, वहां पर बड़ा एक ट्यूमर बन जाता है, स्वेलिंग। इनिशियली रेड, पहले लाल रंग का होता है, धीरे धीरे जैसा पस अंदर आ जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है, पीला रंग आ जाता है। पहले लाल रंग, बाद में पीला रंग। डॉलर, ये डॉलर, रूबोर और कैलोर, ये हमेशा पूछा जाता है ओरल के लिए। एग्जामिनर पूछता है आपको मालूम है डॉलर, रूबोर, कैलोर क्या होता है? तो बोलना चाहिए सर मालूम है मेरे को, ये एब्सेस के लक्षण है। डॉलर का मतलब होता है पेन या दर्द, रूबोर का मतलब होता है रेडनेस, बिकॉज ज्यादा उधर ब्लड आ जाता है, और कैलोर का मतलब है हम ऐसे, यहां पर मेरे समझो कि यहां पर एब्सेस है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर ऐसे देखते हैं, ऐसे ऊपर हाथ लगाना है तो गरम गरम लगता है। जहां भी एब्सिस है वो अवयव गर्म लगता है तो उसको बोलते हैं कैलोर। तो डॉलर, रूबोर, कैलोर, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एब्सिस के बारे में है, आपको ये याद करने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा? देखना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर दिया तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। फिर उसके साथ साथ उसमें कितना जोर सा इंफेक्शन है, ये हम सीबीसी करेंगे। क्या करते हैं? सीबीसी मतलब टोटल काउंट, टोटल ब्लड काउंट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हिमोग्राम, ईएसआर भी बोलते हैं। उसमें आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं। हमारा संबंध ज्यादा अभी व्हाइट ब्लड सेल्स है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स। जब भी इंफेक्शन अंदर आता है, डब्ल्यूबीसी जोर से उधर अटैक कर देते हैं। नॉर्मल काउंट कितना है डब्ल्यूबीसी का? 4 to 11,000 पर क्यूबिक एम। 4 to 11,000 पर क्यूबिक एम। समझ में आ गई बात? तो ये जब 15,000 बन गया तो माइल्ड इंफेक्शन है, 20,000 बन गया पर क्यूबिक एम एम, मॉडरेट इंफेक्शन, 25 से अबव चल गया, सीरियस इंफेक्शन। उसके साथ साथ कभी कभार नीडल के द्वारा वो पस निकाल कर भेजा जाता है लेबोरेटरी में कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। क्या है मतलब इसका? हम जोर से कुछ एंटीबायोटिक दे देते, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमिकैसिन, हाँ, फिलहाल उसका असर नहीं हो पाता। तो ये जब हम लैब में टेस्ट करेंगे कि उसमें कौन सी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो स्टेप्टोकोकस हो, चाहे वो स्टैफिलोकोकस हो, और कुछ हो, न्यूमोकोकस हो, ई कोलाई हो,
तो कौन सा जंतु है और उसके लिए कौन सी दवा या एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी दवा सेंसिटिव, उसके असर ऊपर असर करने वाली दवा को बोलते हैं सेंसिटिव दवा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। आगे चलते हैं, क्या ट्रीटमेंट देंगे। पहले तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा क्योंकि इंफेक्शन है ये। उसके साथ साथ उसकी ताकत बनाए रखने के लिए, हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ओज बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन देते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद एनाल्जेसिक, वेदना कम करने वाली दवा, और एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे कि सिंपल कॉम्बीफ्लाम, आपको मालूम होगा, लिख कर रखिए, कॉम्बीफ्लाम बहुत कॉमन है। पैरासीटामोल एंड आइब्यूप्रोफेन जरूर इस्तेमाल करना। घर में किसी को भी एब्सेस हो गया तो तुरंत एक गोली 3 दफा देनी है खाना खाने के बाद। इसको एक अलग नाम है फार्मेकोलॉजी में, याद है आपको, एनसिड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। हाँ, उसमें वोवेरॉन ये भी फेमस है, डायसाइक्लोफिनेक सोडियम। हाँ, वोवेरॉन, वोवेरॉन ब्रांड नेम है, प्रोप्राइटरी नेम है, और डायसाइक्लोफिनेक ये जेनेरिक नेम है। आप तो जानते हैं अभी के दिनों में ना जेनेरिक नेम लिखना, ऐसा सरकार ने कंपल्शन किया है डॉक्टर लोगों के ऊपर। और जेनेरिक मेडिसिन बेचने वाली अलग अलग दुकान भी है, मेडिकल शॉप्स। ब्रांड नेम की बजाय जब जेनेरिक मेडिसिन लेंगे, कम से कम 50% कम हो जाती है कॉस्ट। बिल्कुल, जैसे कि मानो ये वोवेरॉन एसआर गोली की कीमत 20 रुपए है, जब आप डाइक्लोफिनेक सोडियम लेंगे तो 7-8-10 रुपए में मिल जाएगी। हाँ सर, ऐसा, हाँ ऐसा है, ऐसा है। इसीलिए जेनेरिक नेम देखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। मैं सब स्टूडेंट्स को एक बताना चाहता हूं, जब आप लास्ट ईयर को आते हैं ना भैया, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम रुग्णालय में उधर पड़े रहो यार। छुट्टी के दिनों में सैटरडे संडे को जाइए उधर, देखते जाइए अलग अलग डिपार्टमेंट में। और अंधा देखना, ब्लाइंड नहीं देखना है, आंख खुली रखकर देखना है, नम्रता पूर्वक। जो भी डॉक्टर लोग लिखते हैं ना, आपके नोटबुक में लिखना है, घर जाकर देखना गूगल में ये कौन सा एंटीबायोटिक था, कितने टाइम काम करता है, कैसे काम करता है, डोज क्या है, सब देखना आप। गूगल गुरु की मदद लेना। फिर जो इंफॉर्मेशन देखनी है वो हॉस्पिटल में देखनी पड़ेगी आप। ठीक है, ये मेडिकल हो गए। अभी जब पक जाएगा तो ये देखिए, आमावस्था पच्यमानावस्था में हम ये एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक देकर ऐसा कोशिश करते हैं कि पूरा इन्फेक्शन निकाल दो, और जो बड़ा हुआ एप्सिस है ना उसको डाल दो नीचे, गाड़ दो। ऐसा कर सकते कोशिश, उसकी 100% गारंटी नहीं, वो धीरे धीरे पकता जाएगा। जब आपका दवा काम नहीं कर रही तो पकेगा वो। पकने से बाद क्या करेंगे, पकने के बाद फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट है तो ओपीडी लेवल पर भी ये I&D करेगा, इंसिजन एंड ड्रेनेज। फिर वो नया नया है, कभी सर्जरी डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है, उसको मालूमात नहीं है, तो सर्जन को रेफर करेगा। डियर डॉक्टर, हियर सेंडिंग विथ मिस्टर देशपांडे फॉर द एब्सेस इन द थाई, प्लीज डू द I&D। तो वो सर्जन जो है वो I&D, इंसिजन है, कट करते हैं और ड्रेन करते हैं, पोस्ट ड्रेन करते हैं। इंसिजन एंड ड्रेनेज वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए, सर्जरी के लिए, समझ रहे हैं बात। तो ये सर्जिकल, इसके लिए एक सूत्र बताता हूं, आप अभी लिखे, बार बार वीडियो देखकर लिख दीजिए, परीक्षा में लिखे तो परीक्षक खुश हो जाएगा। क्या लिखना है यहां पर, तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारः। क्या लिखना है, तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारः। इसका मतलब ऐसा होता है, आयुर्वेद, क्योंकि ये मॉडर्न वाले लोग हैं ना, बहुत हमारे ऊपर शक करते हैं, शक करते हैं, सशक।
अरे भैया आप तो आयुर्वेद वाले हैं, आपके यहाँ सर्जरी होती है क्या? आपको सर्जरी अलाउड है क्या? आपके सिलेबस में सर्जरी है क्या? बहुत सारे पूछते हैं। तो एक तो जाकर उनको एक प्रिंट दे देना, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, देखिए आप मेरा सिलेबस। ऐसे कर सकते हो आप, तो उनकी जरा आंख खुल जाएगी, हाँ आए आए सर्जरी। तो ये सब बातें चरक खुद कहता है, चरक खुद कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब हमारी मेडिसिन की लेवल, एक क्षमता उसमें ट्रीटमेंट के लिए काबू नहीं कर रही है, तो उसको सर्जन के पास भेजना है। ये संस्कृत वाला जो कोटेशन है, मैं 3 दफा बोलूंगा, वो परीक्षा में आप लिख सकते हैं। तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारः, तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकारः, मतलब this condition, now this condition of the patient is will be tackled by the surgeon। ठीक है, ये आप थोड़ा भी गड़बड़ी कर दी, पूरे के पूरे ठीक ठाक टाइम में आपने ये कट नहीं किया, एब्सेस कट करना चाहिए पकने पर, तो ये अपने आप बर्स्ट हो जाता है। और अपने आप बर्स्ट होना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसमें अल्सर बन जाएगा। और अल्सर भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं की आपने, व्रण शोधन, व्रण रोपण ट्रीटमेंट नहीं की, तो उसका पर्यावसन साइनस फॉर्मेशन में हो जाएगा, मतलब नली का। साइनस का मतलब होता है जो अल्सर है ना, हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। अल्सर शरीर के अंदर घुसना, और उसके ऊपर एक ही होल है, तो उसको बोलते हैं साइनस। ये हमारी सर्जरी शल्य तंत्र के सिलेबस का चर्चा कर रहा हूं। साइनस शब्द है, पूछा जाता है, मैं भी पूछूंगा आपको। और दूसरा अल्सर का रूपांतरण फिस्चुला, फिस्चुला, 2 शब्द है, एक मैंने साइनस बता दिया, दूसरा फिस्चुला। फिस्चुला का मतलब 2 छिद्र वाला नलिका, साइनस का मतलब एक छिद्र वाली नलिका। द ट्यूब in the body is not, it's not metal tube, it's not rubber tube, just I am saying ulcer is going inside and that becomes a hollow channel, only one opening, sinus। अंदर भी ओपन हो गया वो नलिका जो है ना, अल्सर ट्रैक्ट, तो 2 होल हो गए, एक ऊपर वाला एक अंदर वाला, तो उसको बोलते हैं फिस्चुला। एक होल साइनस, 2 छिद्र फिस्चुला। एक शरीर में फेमस फिस्चुला है, मालूम है आपको कौन सा है आपके सिलेबस में? फिस्चुला इन एनो, लिख सकते हैं आप, फिस्चुला, FISTULO, सॉरी LA, फिस्चुला डैश IN डैश NO, एनो, एनो मतलब गुद, गुद मार्ग, एनस, एनल ओपनिंग मालूम है आपको, टट्टी जहां से निकलती है। हाँ, तो ये गुद के समीप जब ये फिस्चुला बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एनो रेक्टल फिस्चुला। ठीक है, ये फिस्चुला हम आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, मालूम है आपको, सर्जरी वाला ट्रीटमेंट। अरे यार बहुत फेमस है, मेरा बहुत सारे वीडियोज है उसके ऊपर, मेरे मेरे आप क्या करना है ना, शल्य तंत्र का, सर्जरी का मेरा प्लेलिस्ट देखना है। सब स्टूडेंट्स को मेरी विनंती है, उधर एनास्थेशिया वाले वीडियो है, एनास्थेशिया, जनरल एनास्थेशिया, लोकल एनास्थेशिया, आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे व्हाट्सएप करने पड़ेंगे। और कौन सी वीडियो अच्छे हैं हमारी सर्जरी में, कौन से हैं अच्छे? दूसरे अच्छे हैं, एक तो ये बन गया फिस्चुलाइन एनो वाला वीडियो है, भगंदर वाला, भगंदर आयुर्वेद का शब्द है भगंदर। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द क्षार सूत्र, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपके हॉस्पिटल में शल्य तंत्र डिपार्टमेंट में जाने का, उनको विनंती करने का, मुझे क्षार सूत्र देखना है, मुझे क्षार सूत्र, क्षार सूत्र ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे सब कलीग्स हैं जो सर्जरी करते हैं, लाखों कमाते हैं यार, लाखों रुपए कमाते हैं यार।
आपको सबको विनंती है, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द क्षार सूत्र बनाना सीख लो। यही की उम्र है, यही आपका ये लास्ट ईयर है। क्षार सूत्र बनाने वाले और क्षार सूत्र करने वाले बहुत सारे आपके पास नजदीक कुछ सर्जन होंगे आयुर्वेद वाले, उनके यहाँ जाइए, दिन रात सीखिए। बाद में एक 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 सर्जरी, एक एक थ्रेड लगाने के लिए 5,000 10,000 चार्ज करते भैया। दिन में दो दो तीन तीन पेशेंट्स करते हमारे मित्र मंडली आयुर्वेद वाली सर्जरी। एनो रेक्टल सर्जन नाम से प्रैक्टिस करते हैं, एनो रेक्टल सर्जन। जिसको चाहिए नाम पता, मेरे को मालूम नहीं बॉम्बे वाला, जब किधर का भी होगा, पूना में है शायद, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। जरूर व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका नाम पता बता दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बर्स्ट वाला बात मैंने कह दी। उसके बाद होता है टॉक्सीमिया। जैसे अभी की बात है ना, कि जब वो फैल जाएगा पूरे शरीर में तो शरीर गंदा हो जाएगा, और एंटीबियोमा, एंटीबायोटिक के हिसाब से भी वो बन जाता है। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इट इज एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड स्वेलिंग, एंटीबायोटिक के द्वारा, ड्यू टू द इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक 3 दिन का या 5 दिन का कोर्स हम करना चाहिए, लोग आधा में छोड़ देते हैं। तो उसके बाद ये हमारे शरीर में एक एप्सिस जैसा बन जाता है। पस गेट स्टरलाइज्ड एंड प्रोड्यूसेस द फाइब्रोसिस। हाँ, उसका हार्डनिंग हो जाता है, रिजल्टिंग इन थिकनिंग ऑफ द वॉल, बहुत थिक हो जाती है, एंड बिकम द वेरी वेरी हार्ड, कड़क हो जाती है। द मोस्ट कॉमन साइड ब्रेस्ट में हो जाता है, थाई रीजन में हो जाता है, और इस्चियोरेक्टल फॉसा में, वेयर प्रेजेंस ऑफ द फैट इज मोर। The treatment is again the same, incision and drainage. Antibiotic is given after culture and sensitivity. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। What is oral antibioma? An antibioma is a thick walled abscess that frequently develops as a result of poor pus drainage. जब इंसिजन ड्रेनेज करते हैं ना, तो अच्छी तरह से सब पस ऐसे दबा दबा कर नहीं निकाला, कुछ पस अंदर रह गया, तो उसको बन जाएगा एंटीबियोमा। Poor pus drainage during an infection or improper antibiotic administration on the part of the patient. आगे एप्सिस का प्रकार है पायमिक एप्सिस। इट इज ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ पायमिक एम्बोलाई। एम्बोला के बाद पहले सुनिए आप, इन द ब्लड नोन एज अ पायमिक एप्सिस। ओके, दीज एप्सिस आर मल्टीपल इन नंबर, 2 3 4 गुठली बनकर फिरती है, घूमती है यहाँ पर। is known as a non-reactive abscess because it shows the minimum tenderness। ये आपको हाथ से कुछ पता नहीं चलेगा, अंदर घूमती रहती है वो। ठीक है। कोल्ड एप्सिस एक नया प्रकार है एप्सिस का। इट इज कॉमनली ऑकरिंग इन द चिल्ड्रन एंड एडल्ट एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद टीबी। कोल्ड एप्सिस का मतलब टीबी वाला एप्सिस। एप्सिस तो इंफेक्शन के द्वारा होता है, ये तो पता चला ना आपको। यह इन्फेक्शन एक ही है, और वो इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। टीबी वाले जंतु के द्वारा होने वाला एप्सिस कोल्ड एप्सिस, टीबी के जंतु से होने वाला एप्सिस कोल्ड एप्सिस। भूलना मत, ये ओरल को हमेशा पूछते हैं। कई जो अभ्यास नहीं करते ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल फेक फेक बातें करते हैं। वो बोलते हैं ठंडा ठंडा लगता है एप्सिस उसको कोल्ड एप्सिस बोलेंगे। झूठा झूठा है, 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, द इंफेक्शन रीचेस टू द, यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द लंग, क्योंकि लंग्स तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, और उधर के जंतु जो यहाँ पर जाकर लिम्फ ग्लैंड अफेक्ट करते हैं, लिम्फेटिक रूट एंड टॉन्सिल्स। इन दिस एप्सिस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर कोल्ड एंड हेंस द नेम कोल्ड एप्सिस। ठीक है, माइल्ड इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइल्ड इन नेचर। द कॉमन साइट ऑफ दिस एप्सिस इज सर्वाइकल, यहाँ पर लिम्फ नोड, एंड हेंस द कॉलर स्टड एप्सिस। इसको अलग नाम क्या है, ये कॉलर बोन है ना हमारा, कॉलर स्टड एप्सिस। इनिशियली इट अफेक्ट्स ए सिंपल लिम्फ नोड, एक ही, एंड लेटर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सिला। इधर इधर बहुत सारे 3 4 5 इकट्ठा बन जाते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। द सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड एप्सिस एसोसिएटेड विथ एनीमिया, पांडुरोग, हिमोग्लोबिन कम हो जाता है, लॉस ऑफ वेट क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है, और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनोरेक्सिया, भूख बंद, और सायंकालीन मंद ज्वर हो जाता है। इसको भी आईडी, इंसिजन एंड ड्रेनेज करने के बाद AKT, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट देना है, जिसमें स्टेप्टोमाइसिन आ जाता है,
रिफेम्पिसिन आ जाता है, इथाम्ब्यूटाल आ जाता है, पाइरिजिनामाइड आ जाता है। ये सब ड्रग्स कितनी देना है, कैसे देना है, मेरे वीडियो हैं। आपको प्लेलिस्ट का नाम बता देता, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, दोनों एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की प्लेलिस्ट अलग है। जीपी आप 100% अच्छी कर जाएंगे। कोई पूरे के पूरे वीडियो बार बार देखेंगे ना, ऐसे जीपी मास्टर बन जाएंगे आप, जरूर करके देखिए आप। ब्रोडीज एप्सिस, इट इज द एप्सिस एट द हेड ऑफ द बोन। कौन सी भी हड्डी के ऊपर जो उसका हेड रहता है, उसमें जब हो जाता है, पर्टिकुलरली टीबिया, पैर में हो जाता है टीबिया, ड्यू टू द स्टैफिलोकोकाई। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टीबिया और फीमर नीचे है, हाँ ठीक है ना। ब्रोडीज एब्सेस इज अ क्रॉनिक बोन एब्सेस विच कॉजेस इंटरमिटेंट पेन नियर द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो जाते हैं, पेन इन द अफेक्टेड एरिया, टेंडरनेस हो जाता है, स्पर्शासत्व, मैलेस, थकान महसूस होती है, और थ्रॉबिंग, ठक 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 ऐसा पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन। क्या करना है आपको, एग्जामिन जब करते हैं तो एक्सरे निकालना पड़ेगा, एक्सरे से ये पता चलता है। और ब्लड चेक किया तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल जो काउंट है हमारा कितना होता है, 4 to 11,000 या 12,000, उसके आगे 15-20,000 बन गया तो ये क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ये इन्फेक्शन सजेस्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, पेनिसिलिन बेस्ट एंटीबायोटिक, बट आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, यहां मैंने लिखा नहीं है। पेनिसिलिन का एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है, पेशेंट मरता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेनिसिलिन देने से पहले आपको सेंसिटिविटी टेस्ट या टेस्ट डोज देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोकेन पेनिसिलिन 10 लाख, ये पूरे के पूरे 12 दिन 23 वीक्स आपको देना पड़ेगा। उसके साथ कॉम्बिफ्लाम दे सकेंगे, वोवेरॉन दे सकेंगे। इमोबिलाइजेशन, इधर उधर हिलता है तो एप्सिस का जो स्प्रेड, मतलब पस ज्यादा फैल जाएगा, तो उसकी मोबिलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। इफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो रिमूवल ऑफ द सिक्वेस्ट्रम, डेड बोन जो है वहां पर वो निकालना पड़ेगा, तभी आपको आराम मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के 19 नवंबर को डॉक्टर देशपांडे ने दो चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वाली चीजें, डीवीटी की और एप्सिस की बहुत बड़ी चर्चा की आपके सामने। ये ऐसे ही मैं अलग अलग काय चिकित्सा, सर्जरी, शाला के इसके वीडियोस बनाते रहूंगा, और आप भी वो देखकर आपके मित्र के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। टुमारोज लेक्चर विल बी in the morning time, Wednesday, the lecture on 20th of November, the lecture will be at the time of, say for example, 11:30 to 12:30 and not at 12. Okay, the link will be shared. Thank you very much and take care.